Hello everyone, this is Ramandeep Kaur and today we will discuss the questions which I provided you yesterday, and one is related to the Chola architecture and another one is related to post-Gupta period. So here we will start discussing our first question, and our first question is how far temple architecture under Cholas became more refined and grandeur as compared to the early South Indian temple architecture style. So, in a good answer, you know that there are three important part. First is introduction, which should be brief and concise and relevant to the demand of the question. Then there is main body where you can elaborate the answer, and then there is a decent conclusion, which should also be very concise. So, in the question, the examiner wants you to write about the changes brought by the Cholas in the architecture, and also what were the significant features of the temple architecture in South India before Cholas. So, in introduction, you can start by writing what was the time period of Cholas. And here you should remember that the question is about later Cholas. We know that there are early Cholas also who were during the time period of Sangam age. So we are discussing here later Cholas and who existed between 9th to 13th century. And you can also mention some of the important kings of Chola dynasty like Raja Raja I, Rajendra. Such kings you can mention. So after writing a decent introduction, now we'll come back to our main body. And in main body, the subheading approach is always appreciated. So you can make a subheading like uh, early South Indian temple architecture before Cholas. And we have to write in a systematically way, in a chronological form. And now we can write that the origin of South Indian temple architecture lies in Gupta period. We know that during Gupta period, the structural temples came into existence, and before that, the temples were mainly rock cut. So, in a way, in Gupta period, the grand temples construction came into existence. And you can also mention some of the references like big temple of Bhitargaon. You can mention this. And there are also temples like Ladkhan temple Ahol. You can also mention that. Now coming to the South Indian temple architecture directly. First of all, you should mention about Pallavas. Here, Pallavas are very important because they were one of the first rulers or dynasty which initiated the temple architecture. And first of all, the temples were they followed rock cut architecture in temple construction, and we can see this in site like Mamallapuram. Okay, and some of the references you can give about Show temple, which is also there in southern India only, and another is the Rath temple, the 5 Rath temples that are also in Mamallapuram. And in this way you can write about the Pallava architecture, which was largely rock cut architecture. Then you can mention about Rashtrakuts also. And here one reference is very important. You can mention rock cut temple, that is Kailashanath temple in Ellora. That is very important temple. You can mention some of the significant features like it was cut out from a live rock, and it is also constructed in Dravidian architecture style only. Then you can also mention Hoysala architecture, the Helibit temples of Hoysalas, and their significant features like what type of stone was used. And you can also mention that star pattern was also used in temple construction. The interconnected the stones were used in an interconnected way, and less use of cementing material. Such feature, such point you can write. And then you can also mention that Panchatna style of temple, where the 4 temples were in the subsidiary and the main temple was in the center. And such references we can also see in Vishnu temple, that is in Uttar Pradesh. Okay. So by mentioning these 2 3 points, we will now come directly to the demand of the question, that what was the changes that were brought by Cholas. And here you can mention some important kings and the temples which were constructed by them. For example, you can give references of Raja Raja I, and you can mention Brihadeshwara temple
and we all know that the temple is constructed in a southern Dravidian style only. And you can mention some of the feature of the architecture also. For example, monolithic shikhar that is on the top of the temple, that is a monolithic. Then the pyramid type of shikhara, that is also there. Then you can mention the boundary walls, which is an elaborated feature of Chola period. And you can also mention that there were concentric circles, circular walls that were constructed around the temple. And as the other rulers added more temples, then that circle started growing. So in a way, sometimes even the interior shrine is smaller than the shrines which are constructed at the peripheral areas, because they were constructed in the later period. So there was elaborated gopurams also. Hello, ma'am. Hello, hi. Yes, ma'am. Hi, Hi, ma'am. hi, Avinash. Yes, ma'am. मैम मुझे Yes. ये पूछना था कि can we like draw the diagrams of the temples Yes, it is also? very important. It is very important actually in the questions like temple architecture and some questions related to art and culture. It is very important that you should draw a diagram, because by drawing a good diagram, you can explain your point in a very elaborated or good manner. So yes, you should draw a diagram Okay. also. Okay. I will provide a PDF, and that PDF I will also use diagrams also, and very simple diagram, actually not very elaborated one, that you can draw in your exam. And even I used to draw a lot of drawings in my history optional exam. So I would advise you that yes, you should draw more diagrams. Okay. Thank Okay, you, ma'am. Avinash? Okay, Yes, ma'am. okay. So are you getting my point? The points which are I'm trying to teach you Yes, ma'am. about Yes, ma'am. the. Totally, I'm getting it. Yet I'm getting it. Like I wrote this answer, and after what you told, I'm getting it. I'm trying And to you like. can also send me the answer. I will review it also. Okay. Okay, ma'am. Okay. Definitely. I'm a part of like Gantavya 2024, so yeah, I will definitely send Okay. it. Okay. Good to know. Good to know. Okay. Okay. Then we were discussing about that. Then there were elaborated shikras. Then there are sculptures, intricate sculptures, which are also part of the temple architecture, or and even the statues of kings and queens, of Chola queens and kings, that were also you can positioned in the main garbhagriha of the temple. That is one of the most important feature. Then Gopurams we have already discussed. Then there are Pushkarni, that is the temple tank. It is one of the most important feature of South Indian Dravidian style of temple architecture. Then you can mention references of Gangai Konda, Cholapuram, and these temples are constructed by son of Raja first, that is the Rajendra one. And we know that his empire was very elaborated one. Even the Sri Lanka was covered in his empire. Some parts of Southeast Asia was also covered in his. And you can mention Gangaikonda Cholapuram, and also that इसके we पीछे discussed रीजन that. भी देना पड़ेगा लाइक गंगई Hanji? कोंडा चोलापुरम के पीछे जो डिफरेंस रहेगा वो भी देना पड़ेगा कि लाइक व्हाई इट वाज क्रिएटेड ओवर द विन लाइक विन ओवर ऑल द प्लेसेस एंड ऑल Yes, because his empire was extended to that area. Then you can mention. Then one point is that he conquered. He claimed that he conquered the Gangetic region also. That is why he named this region as Gangaikonda Cholapuram. And what was the question? जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री की उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना क्यों बनाया गंगई चोला लाइक गंगई कोंडा चोलापुरम लाइक वो Yes. एक डिफीट हुई थी उसके बाद बनाया था यस सो या यस उसने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की कुछ एम्पायर्स को वो क्लेम करता था कि उन्होंने हराया था, तो इसलिए गंगई मतलब गंगा का रीजन, कोंडा मतलब वो सर वो कॉन्कर्स दैट रीजन। यस मैम वो कहते हैं कि वहां से पानी लेके आए थे कुछ गंगा से हाँ, इस वजह से वो पानी सारी लेके आए थे। जी यस जी बिल्कुल वही। तो यू कैन हाँ मेंशन दिस। एंड ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, तो आई थिंक इतना बहुत होगा इसमें कवर करने के लिए। एंड एक अच्छी से आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये सब पॉइंट्स मतलब सफिशिएंट होंगे। मतलब क्या आप गुप्ता पीरियड से शुरू होके बाद में पल्लवा की रेफरेंस दो, बाद में राष्ट्रकूट होसाला की दे दो, फिर चोलास के ऊपर आ जाओ। तो एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी नहीं सुन मैम रही ये हूँ। नहीं मैम ये इतना ही था इस क्वेश्चन से ठीक, रिलेटेड इतना ही था
ठीक है, बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ही हो, ताकि आप जो बहुत इधर उधर की नॉलेज होती है, जहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको आप इग्नोर भी कर सको, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होती है कई बार वो, और ऐसे ही दे रखी होती है। ओके ओके, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अपने सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर हो तो नो आप मैम, कोई ना बाद में भी पूछ सकते हैं यस मैम, मुझसे। यस ठीक है, ओके। मैम, अगला नेक्स्ट, इंग्लिश में कोई दिक्कत है बोलने में तो मैं हिंदी में बोल नो सकती लाइक हूँ, आप इट्स एब्सोल्युटली फाइन मैम, वी कैन टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, लाइक आई एम ओके कंफर्टेबल विद बोथ। ओके ओके ओके। सो द सेकंड क्वेश्चन is it correct to say that the post Gupta period was remarkable for the expansion of religious cults in India? So in this question, this is for 15 marks, and in this question you have to answer about the religious changes or the religious cults which came into existence post Gupta, after post Gupta period, that is after 5th 6th century. You can mention those points. Okay, now you should start by writing that after decline of Guptas in 5th century, there are various dynasties which came into existence because the vacuum was created due to fall of this great empire, and in this way you can write a good introduction. And now coming to the main body, in the main body you have to write about the question is about, is it correct? It wants to, the examiner wants to know your viewpoint about it, that is it correct to say that post Gupta period was remarkable for the expansion of religious cults in India, that there was expansion of other religions like Buddhism, Jainism, Tantrism, and another, we will discuss it later, and such points you have to write in the answer. So, in main body, you should write certain points about the establishment of mainstream religion, that during the Vedic age, the ritualism came into existence, or the ideas associated with Hinduism, they gained currency. You can write that. Then Vedas like Rig Ved, Samveda, and other two Vedas also, they paid emphasis on the yagyas and rituals, and main emphasis was on rituals. So in this way, and though the temple worship, the structured temples came into existence in Gupta period only, but there is rise of other religious sect in later Vedic period also. We know that during the age of Mahajanpads, there were 16 heterodox sects, and Jainism and Buddhism and Ajivikas was one of them only out of those 16 heterodox sects. And now coming to Mauryan age, we know that different rulers of Mauryas, they propagated various religion. For example, Chandragupta Maurya, he followed Jainism. Then his son Bindusar, he was follower of Ajivika sect. Then there is Ashok, he was follower of Buddhism. You can mention these 3 points. Then coming to Gupta age, we know that the dynasty was very much Hinduized. Okay, they follow rituals also, and even the Brahminical traditions मैम, were also हेलो followed मैम, by them. Yes, yes. but like if you will give the references of ancient India and all ancient history, so like yes, it will be like answer ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि the thing is it will be like 15 marks. So like Yes. in my point of view, it will be like ki we can give the, like how I can say in the introduction, we can tell ki the period between this and this and this and this were great remarkable expansion of the cultural religious cult in India, but पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज मोर, और फिर उसमें तांत्रिज्म का रिस्पेक्ट, और उसके बाद आदि शंकराचार्य ने जो लाइक न्यू वैदिक लाइफ फिलोसॉफी, उसके बाद आदि लाइक सारी चीजें, उसके बाद फिर लाइक बुद्धिज्म का हम लोग बता सकते हैं कि बुद्धिज्म डाउन हो रहा था, पर उसके अलावा भी दूसरे रिलीजन पे लाइक तांत्रिज्म और भी जो नए वज्रयान ज्यादा इंपॉर्टेंट गेन कर रहा था, तो ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे ही आना है। इसी पे सबसे पहले तो हमें भक्ति मूवमेंट वगैरह को डिस्कस करना है, एंड जो फॉलोअर्स ऑफ नयनार्स उनको डिस्कस करना है, अलवर्स उनको आप डिस्कस करोगे, तो एक काइंड ऑफ इसे इनको रिलीजियस सेक्ट ही माना गया है उस टाइम। फिर आप इसे करोगे, फिर आप भक्ति में आप शंकराचार्य, यस, उनकी रेफरेंस दे सकते हो, रामानंद उनकी एग्जांपल्स दोगे, सब इनकी एग्जांपल्स दे सकते हो। जो भक्ति मूवमेंट के सारे सेंट है, आप उनकी एग्जांपल, उनमें से कुछ भी चूज कर लो। जो मैं अभी बोल रही हूँ उसमें बिल्कुल ये जो आंसर है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में है, बट आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पिक करके वो आप आंसर में लिख सकते हैं। मेरा मकसद मतलब समझाना है कि थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ, क्योंकि बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली क्वेश्चन की जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है।
ज्यादा लिखोगे तो बाकी क्वेश्चंस पे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यस मैम। हाँ, तो ये सबसे पहले तो फिर आप यही भक्ति मूवमेंट वाला पॉइंट लिखेंगे कि नया नाज आते हैं। आप कुछ रेफरेंसेस, अंडल की आप एग्जांपल दे सकते हो, वाज अ विमेन भक्ति, एक सेंट थी। ये मेंशन करने के बाद आप आएंगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जी, फिर इसमें आप बता सकते हैं, बाद में आप शैविज्म के कुछ जो तांत्रिक सेक्ट्स है ना, उनकी जरूर रेफरेंस दे। फॉर एग्जाम्पल लाइक पशुपत, Kalmukh, and other like Kolakapalika. They also came into existence during this period only. This is one of the most important points of this answer. क्योंकि तांत्रिज्म का राइज होता है इस टाइम पीरियड में, तो उसे भी एक तरह का रिलीजियस सेक्ट माना गया है, जबकि वो एक सब पार्ट है हिंदुइज्म या शैविज्म का ही। लेकिन इस क्वेश्चन में आप उसे ये लिखोगे। फिर ये आप लिख सकते हो कि भक्ति वाला हम पॉइंट कवर कर चुके। सेकंड पॉइंट हमने ये कवर कर लिया कि तांत्रिज्म का राइज होता है। फिर हम भक्ति को इलेबोरेटेड फॉर्म में आप थोड़ा लिखे, मतलब 2-3 पॉइंट जरूर लिखे उसके लिए। फिर तांत्रिज्म के ऊपर 2-3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे कि बहुत सा फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो थे, 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन बार बार बंद हो रही है, 1 सेकेंड। यस। हाँ, then there is syncretism of deities also. For example, different types of gods की worship, एक जिसको आप कह सकते हो कि एक ही गॉड के कैन कई वी गिव अवतार एग्जांपल फॉर्म्स। गणेश जी? लाइक गणेश जी आल्सो लाइक स्टार्टेड बिकॉज़ 9th और 10th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म आया था, तो उस वजह से गणेश जी की भी पूजा उसी टाइम स्टार्ट हुई थी 9th 10th जी सेंचुरी में। जी उसके पहले जी। गणेश जी का रेफरेंस नहीं मिलता इतना। हाँ, मतलब पूजा तो पहले भी होती थी, लेकिन उस टाइम और ज्यादा उस चीज के ऊपर फोकस दिया गया, ये कह सकते हैं। बाकी जैसे ये जो अवतार है ना, अवतार का जैसे सिस्टम है कि कृष्ण जी के, विष्णु के अवतार हैं, राम अवतार है, इनके ऊपर भी उस टाइम बहुत बुद्धा को भी लाइक इसी टाइम पे कहा था 11th बिल्कुल सेंचुरी में कि कि वो, अवतार है। हाँ, वो अवतार है, कि हिंदुइज्म के ही वो अवतार है। इसी टाइम पीरियड में ही कहा गया था एक्चुअली, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद। क्योंकि हम देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता के बाद ना बुद्धिज्म का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि हूण लाइक इन्वेजन होती तब है। द फ्यूडलिज्म इकोनॉमी वो सर्व करने के लिए ब्राह्मणिज्म का इम्पैक्ट बढ़ रहा था, और ब्राह्मणिज्म का टाइम की नीड के हिसाब से सबको जो भी चीजें थी उनको इंटीग्रेट कर रहा था खुद के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो एक तरह का ना उसकी जो एक अलग आइडेंटिटी थी ना शुरुआत में, कि बुद्धिज्म अलग तरह का रिलीजन क्या, वो धीरे धीरे ना उसने जो हिंदुइज्म के ही मेन जो कुछ इंग्रेडिएंट थे, जहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनको अडॉप्ट कर लिया। फिर उसमें ऐसा भी हिस्टोरियन बोलते हैं कि बहुत सारा करप्शन, जैसे नन्स एंड मंक्स जो पहले के बहुत एक एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, बाद में जब फ्यूडलिज्म वगैरह का भी रूल होता है, तो एक तरह के करप्ट हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा करप्ट हो जाता है। फिर विमेन महायाना का, के थ्रू लाइक पूरा चेंज हो गया था एक तरह से। महायाना के थ्रू सारे जो भी थे नन्स और ये सारी हाँ, चीजें, मॉन्क्स, ये फिर लोग लेविश लाइफ जीने लगे थे। बिल्कुल फिर डिवीजन हो जाता है, हीनयान में, महायान में, वज्रयान, ये सब उसके अंदर सेक्ट बन जाते हैं। फिर ये नॉर्दर्न पार्ट में चला जाता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में चला जाता है, तो उधर ज्यादा फैल जाता है, जबकि अपने जो बर्थ प्लेस है उसमें से इसका डिक्लाइन हो जाता है। फिर आप ये कह सकते हैं। फिर जैसे हमने बोला कि सिंक्रेटिज्म ऑफ डेटी, सिंक्रेटिज्म लाइक फॉर एग्जांपल वासुदेवा को विष्णु से इन्होंने करना एसोसिएट शुरू करा। फिर कृष्ण वर्शिप शुरू होती है, इस टाइम बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया कृष्ण के अवतारों के ऊपर, उनको करा गया है। फिर इस टाइम पे रॉयल स्पोर्ट भी बहुत टेम्पल्स को दी जाती है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में कई हिस्टोरियन मानते हैं कि डिक्लाइन होता है इस फेज में, कि रिलीजन का, हिंदुइज्म का ही वैसे तो वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी डायनेस्टीज देखेंगे जो बहुत इनको डोनेशंस देती हैं, टेम्पल्स को मठ देती हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें ये बताया जाता है। लाइक चोलास किंग और चोलास ने दिया था, और भी बाकी हाँ, रूलर्स ने दिया था जो हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे, बकपतिज्म को मेनली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रकूट की बहुत सारी ऐसी है। फिर ये जो थे चालुक्य अस्ते बादामी के, इनकी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन ऐसी मिलती हैं। तो ये आप इसको कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि जैसे
फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलीजियस प्लेसेस थे ना, जैसे मथुरा, वाराणसी, इनको भी उस टाइम ना बहुत करेंसी गेन होती है। करेंसी गेन इन द सेंस के इनके पिलग्रिमेजेस शुरू हो जाते हैं, लोग पिलग्रिमेजेस एंड रिचुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। एंड हमने वो पहले भी पढ़ा था कि जो गुप्ता एम्परर्स थे वो शैविज्म एंड वैष्णविज्म के मतलब को पूजते थे, जा उसको मानते थे। तो लेटर पीरियड में ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन हाँ इसके अंदर पहले तो वो मेन स्ट्रीम में मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है, उसी के अंदर सब डिविजन बन जाती है, मतलब सेक्ट बन जाते हैं। जैसे हमने देखा अलवर्स एंड नयानार्स आ जाते हैं, शैविज्म के अंदर बहुत सारे तांत्रिक सेक्ट आ गए। तो इस तरीके से बहुत रिलीजन जो है एक ट्री की ब्रांच की तरह समझ लो, ऐसे ही बटना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है यस आपको? मैम। यस मैम। हाँ, बाद में जैसे जिनको ट्राइबल वर्शिप बोला जाता है कि वो ट्रीज की एंड नेचर की वर्शिप करते हैं, उसको भी ना मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी जाती है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल वो ट्री स्पिरिट्स इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, एनिमल स्पिरिट्स में। बट यहाँ क्या होता है कि वो लोग भी जो होते हैं उस रीजन के, वो भी जो मेन स्ट्रीम की जो प्रैक्टिसेस होते हैं, रिचुअलिज्म्स होते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड ये बाई डायरेक्शनल था, ये गिव एंड टेक की तरह हुआ, मतलब कि कुछ हिंदुइज्म ने वो वाली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा, और कुछ जो ये ट्राइबल रिलीजन थे उन्होंने इस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा। फिर ये पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं। कोई और पॉइंट जो आपको आइडिया आ रहा हो और छूट रहा हो? मैम बुद्धिज्म सूफीज्म एंड का भी जैनिज्म। ये लाइक इसमें तो सूफीज्म का भी हम लोग एक वो डाल सकते हैं, क्योंकि लाइक 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में सूफीज्म भी आने लगा था विद लाइक हाँ, मतलब वो कॉन्करर्स एंड थोड़ा सा ऑल। ना लेट पीरियड में शुरू होता है। जैसे पोस्ट गुप्ता में हम इमीडिएट 5th 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी उनकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बाद में है। आप लिख मैम सकते हो इसमें उसका एक पेट्रोनेज पॉइंट। वाली बात कर सकते हैं हम लोग की, जैसे एग्जांपल है पहले पेट्रोनेज कुछ रिलीजन को मिल रहा था, जैसे अशोका के टाइम पे या उसके बाद वाले टाइम पे बुद्धिज्म को ज्यादा पेट्रोनेज मिल रहा था, जैनिज्म को ज्यादा पेट्रोनेज मिल रहा था। पर फिर बिल्कुल। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद वाले पीरियड में ये जो हिंदुइज्म रिलीजन थे जितने, उन लोगों को ज्यादा पेट्रोनेज मिल रहा था किसी पर्टिकुलर गॉड को। जैसे गुप्ताज अपने नाम के आगे भगवत मतलब भगवान का कुछ नाम भाग रख देते थे, जी, भागवत परम भागवत भागवत, परम भागवत। या हाँ, सो समथिंग ऐसे। लाइक दैट वी कैन गिव रेफरेंसेस। हाँ, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसमें ना, हाँ, हर्ष का जो है, हर्ष की रेफरेंसेस हम छोड़ रहे थे। देखो जो हर्ष का बायोग्राफर है बाण भट्ट, वो लिखते हैं कि जो हर्ष थे वो पहले शैविज्म, शिव के पुजारी थे, शैविज्म को मानते थे। लेकिन जब वो ह्यून सैंग के इन्फ्लुएंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में, तो सो पहले एक तरह का जो वो पैट्रोनेज हिंदुइज्म को मिल रही थी वो शिफ्ट हो गई बुद्धिज्म की तरफ। सो एक तरह हर्ष के पीरियड में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को एक रॉयल पैट्रोनेज मिलती है। जी ये मैम, आप वो लिख लाइक सकते 5 हैं। साल में वो एक असेंबली पूरी करते थे इलाहाबाद में, 5 बिल्कुल, साल हर 5 साल और करते सब थे। कुछ दान कर देते थे। बिल्कुल, वो असेंबलीज का जिक्र भी है, उनकी बुक में भी जिक्र है, इवन हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जैनिज्म हाँ मिस कर दिया। देखो जैनिज्म जो था वो ना वो उसमें उसका भी डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन इस तरह होता है कि वो कुछ ही पॉकेट्स में सिमट के रह जाता है। लाइक गुजरात जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी ना और मर्चेंट कम्युनिटीज थी, मेन वही प्रोपेगेटर्स रह जाते हैं जैनिज्म के, और मेन स्ट्रीम से उसका डिक्लाइन हो जाता है। उसका भी यही एक इम्पोर्टेंट कारण बोला जाता है कि उसने भी वो ऑलमोस्ट हिंदुइज्म की तरह ही हो चुका था। तो जब डिस्टिंक्शन जहाँ लोगों को समझ नहीं आया, तो धीरे धीरे डिक्लाइन। फिर वो बहुत नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता था कि आप थॉट्स में भी नॉन वायलेंस ना करें, कि किलिंग एक जीव को भी ना हत्या करे। तो जो कम्युनिटीज लाइक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, उनको तो जब एग्रीकल्चर करते हैं तो बहुत सारे जीव जो है, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके भी वो मर जाते हैं। तो एक तरह का जो ऐसी कम्युनिटीज थी जो ये स्ट्रिक्ट जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं कर सकते थे, तो वो भी जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से जो जो बहुत रिजिड था ना, उसकी वजह से जैनिज्म का भी डिक्लाइन होता है। ये आप कर सकते हैं यस मेंशन। मैम। मैम इसमें एक जी चीज और हम दे सकते हैं, लिंगायत। जैसे लिंगायत का राइज भी 8 9 सेंचुरी में होता है पोस्ट गुप्ता। लिंगायत जो जी, कर्नाटका में राइज हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बात है कि हम ना पोस्ट गुप्ता से शुरू होके हम कहाँ तक लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लिंगायत का जो है वो भी भासव जो थे, कालाचोरी के कोर्ट में जो थे तो वो भी, हाँ, बिल्कुल उनका मेंशन भी बिल्कुल जरूर करना है आपको। कि वो एक तो वो शायद बरियल करते थे,
क्रीमेशन नहीं करते थे, यस मैम, उस लाइक वो पॉइंट को टोटली आप। वो दे वर लाइक शिव भक्त एंड शी दे वर हाँ वीरिंग दैट लिंगा साइन ऑन देयर, लाइक वो बिल्कुल, बिल्कुल इसका एम्यूलेट टाइप बना के पहनते थे वो उसको। हाँ अपने कंधे पे या गले में डालते हैं। जी तो जी वो रिचुअल्स को भी मानते हैं, कुछ कुछ ऐसा है कि, लेकिन वो इक्वालिटी में काफी बिलीव करते हैं, सोशल इक्वालिटी के वेरियस जो क्लासेस के लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कास्टलेस सोसाइटी बिलीव करते थे, कास्टलेस बसव मानते सोसाइटी भी थे। बिलीव करते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे इसमें। तो इस तरह करके आप, ये काफी 7-8 पॉइंट हमारे हो गए हैं एक तरह का। फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति हो गया, उसमें नयनाज अलवर का जिक्र करें, फिर आप शंकराचार्य का, रामानुजा, इन सब का भी जिक्र करें, फिर आप बुद्धिज्म का करें, फिर आप जैनिज्म का करें, फिर हिंदुइज्म का भी करें, फिर तांत्रिज्म का करें, शैविज्म, वैष्णविज्म, इन सबको, फिर सूफिज्म के ऊपर भी 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं कि राइज होना ग्रेजुअली बाद में उसका भी राइज होता है सूफी मूवमेंट का, कि इराक से शुरू होती है, जब मिडिल ईस्ट से शुरू होती है, और फिर जब इन्वेजन स्टार्ट होते हैं तो उसके साथ कुछ जो सूफीज हैं, जैसे ये जो है अपने अजमेर वाले, ये भी आते हैं गजनी के साथ। हाँ, वो आना ख्वाजा। वो आना शुरू हो जी, गए। हाँ। तो इस तरह हाँ, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे ही रिलीजियस पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहे यहाँ पे? जी मैम, लाइक अभी तो इतना ही है। हाँ। जी अ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको और स्ट्रक्चर्ड करके जो पीडीएफ में डालूंगी, उसको और स्ट्रक्चर करके डालूं। और इसमें आई थिंक इसमें तो कुछ फिगर्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट क्वेश्चन में पड़ेगी, आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। यस और हाँ, बाकी आज भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, आप कोशिश करना, आप लिखो उसे और आप एक बार मुझे भेजना, मैं उसे जरूर रिव्यू करके आपको फीडबैक यस दूंगी मैम, कि कहाँ इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली। जरूरत है। आप यस बिल्कुल भेजना मुझे। यस मैम। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो? बाकी हम अपना ये पूरा कोर्स भी जल्दी ही शुरू करेंगे, कि शुरू से लेके एंड तक, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को पूरा एंड पीवाईक्यू को फोकस में रखते हुए ये सारा जो है उसे कवर करेंगे। यस मैम, मैम तो थोड़ा सा मुझे बस लाइक साउथ इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा कम उसमें इशू आ रहा है, बाकी तो लाइक मैं कर रहा हूँ, बाकी चीजों तो मुझे किसी इशू आ नहीं रहा है। साउथ इंडियन भी समझ में आ रहा है, बट लाइक थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, सो या नहीं साउथ नहीं, कोई इंडियन ना, हिस्ट्री। बहुत अच्छे से हम करेंगे पूरा, मतलब एक दिन पूरा साउथ इंडियन हिस्ट्री को ही क्रोनोलॉजिकली जब पढ़ेंगे ना, तो तब वो ज्यादा समझ में आती है। जब हम ना उसे अलग अलग करके पढ़ते हैं ना, कि पहले संगम एज के पढ़ लिए, बाद में हम नॉर्थ का कोई एम्पायर पढ़ लिया, तो नीचे वाले को बस थोड़ा ही ध्यान दिया कि नीचे कौन सी किंगडम्स थी, तब ना यहाँ पे हमें वो फ्लो नहीं समझ आता कि नीचे किस फ्लो में या किस क्रोनोलॉजी में चल रही थी डायनेस्टीज। तो हम क्या करेंगे, साउथ इंडियन हिस्ट्री को पूरी हम स्टोन एज से शुरू करके और मॉडर्न एज तक उसे पूरा ऐसे कवर करेंगे, ताकि वो फ्लो में आप समझ पाओ कि कैसे कैसे कौन सी डायनेस्टी आती है, किसका डिक्लाइन हुआ, किसका राइज हुआ। तो इस तरीके से कवर करेंगे इसे। और कोई आपका डाउट है? नो मैम, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। यस आप मैम, आंसर जरूर लिखना। बिल्कुल मैम। ओके, तो कल शाम तक आप आंसर भेज देना, बाकी कल 9 बजे यस मैम। जो आज मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी उसकी कल हम डिस्कशन करेंगे। ओके मैम। ओके, सो अभी हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ओके, फॉर थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेटिंग। मैम। यस, ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल मैम। बाद में क्वेश्चन करके भी आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। यस मैम। यस, ओके। थैंक ओके, यू। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।